Hello friends, welcome you all on Learn It ITJ with Babita. Friends, today we are doing Chemistry Chapter 6 Thermodynamics Part 2. So entropy and second law of thermodynamics. First law of thermodynamics is unable to predict and explain the direction of chemical change or feasibility of process in a particular. Second law of thermodynamics introduces the concept of entropy and its relation with spontaneous process. The disorder or degree of randomness in a system is expressed by a function of thermodynamics called entropy. It is an extensive property and state function. यानी डेल्टा S इक्वल टू S final state minus S initial state. Change in entropy is defined as ratio of heat absorbed by a system at which it is absorbed, यानी डेल्टा S इक्वल टू Q रिवोल्यूशन बाई T, यानी डेल्टा S की यूनिट हो गई जूल पर K इनवर्स. यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that entropy of universe always increase in every spontaneous process. Relation of entropy with different thermodynamic parameter for different process. आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो, यानी डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू. डेल्टा एस क्या था? क्यू आर ई वी बाई टी, यानी डी क्यू डब्ल्यू बाई टी, यानी डी क्यू आर ई वी क्या होगा? प्लस 2.303 एन आर टी. टी से टी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ. log v2 बाई v1, यानी डेल्टा एस की वैल्यू आ गई 2.303 एन आर log v2 बाई v1. आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो, क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डी टी, डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन सी वी log t2 बाई t1, यानी यहाँ पे टेम्परेचर है, वहाँ पे वॉल्यूम थी. फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस डेल्टा पी इक्वल टू ज़ीरो, क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डी टी, यानी डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन सी पी log टी टू बाई टी वन. सेम है, लेकिन ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबैरिक है. टी टू सेम रहेगा. यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर है, वहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम था. फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में नहीं होगा, यानी डेल्टा एस वो ज़ीरो से छोटा होगा. डेल्टा एस इक्वल टू ज़ीरो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा, यानी क्यू आर ई वी इक्वल टू ज़ीरो, और डेल्टा वी होगा माइनस पी डेल्टा वी के बराबर. इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस some sort of work is done due to which there will be some randomness in particles. That is why the entropy range is not zero, though the process is adiabatic. Irreversible process होता है, उसमें कुछ काम किया जाता है जो एकदम सडन होता है, जिसमें randomness आती है particles में. While the entropy range is not zero, though the process is adiabatic. यानी फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी. हम देखते हैं कि जो हमारे अराउंड ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट हीट भी रिलीज करती है और वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है. जो हीट प्रोड्यूस हुई दैट इज फ्री एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. Gibbs energy, also called free energy, refers to the capacity of system to do the useful work. It may be defined as amount of energy available from a system at given set of conditions that can be put into useful work. यानी वो कोई काम कर सकती है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते. Z इक्वल टू एच माइनस टी एस, यानी E प्लस पी वी माइनस टी एस, ये होती है गिब्स एनर्जी. Z इक्वल टू गिब्स एनर्जी, H इंथैल्पी होता है, S एंट्रोपी और T टेम्परेचर होता है. इसमें ये कहते हैं इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. अगर डेल्टा जी ले तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी टी पी यानी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी. Thermochemistry, it is the heat or enthalpy of reaction, delta RH. Enthalpy of reaction depends on physical states of reactants and products, also on allotropic forms of substituents, and it is also differs in case of dry substance or solution form. Enthalpy of heat formation, amount of heat absorbed or released when 1 mole of substance is directly obtained from constituent element, यानी delta FH.
heat of combustion, delta Ch. Amount of heat released by 1 mole of substance, combustible substance, when completely oxidized. यानी calorific value of delta Ch by molar mass. Enthalpy of solution, amount of heat released या absorbed when 1 mole of substance dissolved in excess of solvent. Enthalpy of neutralization, delta NH, amount of heat released when 1 gram equivalent of strong acid या strong base neutralized to form water. डेल्टा NH होता है -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा NH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. Delta NH for weak base, weak acid will be less. Enthalpy of phase change, solid से liquid यानी melting, delta melt H. liquid से fizzing, solid बनता है delta freeze H. liquid से vaporization, gas delta vaporization H. gas condensation से liquid, delta condensation H. gas फॉर्म होती है सॉलिड से सब्लिमेशन, डेल्टा सब्लिमेशन H. और गैस से सॉलिड डिपोजिशन यानी डेल्टा डिपोजिशन H. 7th, enthalpy of hydration, amount of heat released या absorbed when 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt is allowed to combine with required number moles of water to form specific hydrate. यानी CuSO4 है प्लस 5H2 यानी CuSO4.5H2. डेल्टा H हाइड्रेट इसमें एनर्जी फॉर्म होगी. अब एक क्वेश्चन है, 1.250 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ ऑक्टेन C8H18 in excess of O2 in a bomb calorimeter. The temperature of calorimeter rises from 294.05 Kelvin to 300.78 Kelvin. If heat capacity of calorimeter is 8.93 kilojoule per K inverse calorie inverse, calculate the heat transferred QV. Also calculate the enthalpy of combustion of octane per mole. QV CM into delta T वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें. तो QV इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज़ होगा जैसे कि बताया था. तो QV कैलकुलेट हो जाएगा. C की वैल्यू इसमें दे रखी है 1.250 ग्राम, M 8.93 किलोजूल केल्विन इनवर्स दे रखी है, और डेल्टा टी यानी 300.78 केल्विन माइनस 294.05 केल्विन यानी 6.73 केल्विन. तो ये आ जाएगा 1.250 इंटू 8.93 इंटू 6.73 यानी 54.0298 यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.500. ये अप्रोक्स इतना आंसर आएगा हमारा. तो डेल्टा H होता है वो अप्रोक्स होता है डेल्टा E के, ये हमने पढ़ा था. तो डेल्टा H क्या होगा 67.500 जूल ऑफ C8H8 किलो जूल. मोल्स कितने हैं 1.250 ग्राम. तो इसकी मोल कैपेसिटी होती है 144 यानी मोल्स आ जाएंगे 1.250 बाय 144 यानी 8.86 जूल पर मोल. और किलो इतने किलो जूल हैं तो कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस हैं 8.86 जूल्स पर मोल. दिस विल बी अवर आंसर. नोट इट डाउन. Next question. Combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atm pressure. After combustion,
of CO at 298 Kelvin and 118 pressures. Combustion CO2 and H2 are formed है. 3267.0 kilojoule of heat is liberated. Calculate standard enthalpy formation of C6H6. Given value है delta HF of CO2 and H2 are minus 393.5 kilojoule and minus 285.83 kilojoule. यानी टेम्परेचर उसने दिया था हमें T इक्वल टू 298 केल्विन. प्रेशर दिया था 1 atm, राइट. और हीट लिबरेटेड कितनी थी? 3267.0 किलो जूल. डेल्टा एच एफ और डेल्टा O2 दिया था. इक्वेशन बनाते हैं. C6H6 प्लस O2 6CO2 प्लस 3H2. O2 को बैलेंस करेंगे यानी 15/2. ये होगा इसका रिएक्शन. तो डेल्टा HF बेंजीन निकालना है हमें. तो 6 कार्बन के हैं यानी 6 इंटू इसकी इंथैल्पी माइनस 393.5 प्लस 3 H2 के हैं 285.83 माइनस 32674 यानी हीट लिबरेटेड है तो ये माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3267.0 किलो जूल यानी ये आएगा माइनस 3218.49 प्लस 3267 किलो जूल यानी 48.51 किलो जूल पर मोल, राइट.